find harmonic mean of the roots of the equation. Find harmonic mean of the roots of the equation. 5 plus root 2 into x square minus 4 plus root 3 into x plus 8 plus 2 root 3 equals to 0. Find the harmonic mean of the roots of this equation. बता रही हो कि आंसर सानवी की टेक्स्ट कर रही हो? यस साइना. That is correct, Drisha. That's right, Aparna. That is right, Janvi. इतना इजी क्वेश्चन है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? Okay. Too easy है, that's why I'm telling this. Alpha beta अगर रूट्स मान लेंगे, हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स मतलब हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बाय नाउ याद हो जाना चाहिए, 2ab upon a plus b या 2 alpha beta upon alpha plus beta. So this is the answer. So 2 alpha beta, so 2 times alpha beta is product of the roots. Product of the roots is given as c divided by a. C by a. 8 plus 2 root 3 divided by 5 plus root 2. Whole divided by alpha plus beta is minus b by a. ये भी पता होना चाहिए. तो 4 plus root 3 divided by 5 plus root 2. साफ देख सकते 5 plus root 2 कैंसिल हो जाएगा. 5 plus root 2 कैंसिल होने के बाद बाकी 8 plus 2 root 3 में से 2 कॉमन निकाल दो, 4 plus root 3 आएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा. That's it, मानसी, इब्राहिम. सिर्फ एक ही लड़के ने आंसर दिया, बाकी लोगों को आया कि नहीं आया? निधि, शोजल, यार इजी था. जयराज, हाँ सर आ गया था. 4 is the answer. ठीक है. Next question. 2 times 2, 4 is the answer for this sum. Okay. Write down one more question. I will wait for one more question. उसके बाद we'll start with the concept, new concept. If the roots of the equation, if the roots of the equation a times b minus c into x square
plus b times c minus a into x plus c times a minus b equals to 0 are equal. Then a comma b comma c are in dash, fill in the blank. The options will be AP, GP, HP, none of this, something like that. If the roots of this equation are equal, then ABC are in which series or which sequence? That is right, Ibrahim. काफी फास्ट किया मानसी इब्राहिम दोनों ने. सर आपने इक्वल रूट्स बोला तो हो ही गया वहां पे. ओके, इक्वल रूट्स बोला, फिर क्या किया? सर फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0. डिस्काउंट इक्वल टू 0 सॉल्व किया क्या तूने पूरा? हाँ सर, स्क्वायर ही है तो सब कैंसिल आउट होता है. ओके, मैंने खुद ने ट्राई किया. बी स्क्वायर माइनस 4ac में सब कैंसिल हो जाता है क्या? यस सर. एक्सपेंड कर दिया मतलब. हाँ सर. तूने कैसे किया मानसी? सर सेम. और सर मैंने ये सब पहले भी किया हुआ था तो मुझे याद था. Okay. I am also curious now. Roots are equal देख के discriminant equals to 0 बता रहे हो. तो b square into c minus a का square minus 4 into तो पूरा एक्सपेंड किया क्या फिर? मुझे बस इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं हो रही है. आई एम नॉट श्योर यार इब्राहिम, तूने इतना फास्ट. कुछ कैंसिल हो भी रहा है क्या? कैंसिल हो भी रहा है तो भी बचेगा क्या? कुछ कुछ रहेगा. सर इसको फाइनल आ जाता है AB plus BC equals 2AC. AB plus BC minus 2AC equals 0. बस सब स्क्वायर्स में थे ना? स्क्वायर्स कैसे गायब हो गए? एक बार रफली चेक करो ना, एक बार स्टेप्स बता दो ना. सही कह रहे हो तुम लोग? सर मैं स्टेप्स लिखता हूँ सर. हाँ, नहीं तुम लोग बोल तो सही रहे हो और वही आना चाहिए. What about others? What are you doing? किसी एक ने किसी एक और अच्छा सा हिंट बताया just now. किस I didn't. वन डाल. That is right, Anirudh. What about others? What have you observed in this question? Have you observed something symmetric in the? That is right, Janvi. There is something symmetric in the coefficients. Coefficients are a times b minus c, b times c minus a, and c times a minus b. So basically, what they are, एक में b minus c, एक में c minus a, एक में a minus b है. Especially जब symmetric से रहेंगे coefficients, like Janvi and Anirudh have noticed, x equal to 1 substitute करेंगे, x equal to 1 substitute करेंगे तो ये equation को satisfy करेगा क्या? Yes, sir. If x equals to 1, this equation will become a times b minus c or ab minus ac plus bc minus ab plus ca minus bc, which will of course become 0. So basically x equal to 1 is a root. Okay. And it is given that roots are equal. So the other root should also be 1 only. So I can say that both roots
आर 1,1। अभी दोनों रूट्स पता चल गए 1,1, तो क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? Product of the root, sum of the roots. सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज कर सकते हैं। लाइक इफ आई वांट टू यूज अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज करना चाहता हूं, तो इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? C into A minus B A minus divided by B. A into B minus. Divided by a into b minus c, that should also be equals to 1 into 1. 1. Yes. 1. This should also be equals to 1. So this should also be equals to 1. So इसके बाद next step यहाँ लिख रहा हूँ, तो we'll get CA और AC minus BC is equals to AB minus AC. Or if we rearrange it, we'll get 2AC is equals to B times C plus A. Or if we rearrange it more, we'll get B equals to 2AC upon A plus C. Since B equals to 2AC upon A plus C, we can see this expression and realize that A, B and C are in harmonic progression. ठीक है, बेसिकली x equals to 1 इज ए रूट करके थोड़े लोगों को समझ में आया, अच्छी बात है, सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब से जब भी ऐसे सिमेट्रिक कोएफिशिएंट्स रहेंगे जस्ट गेस कर लो, एक रूट 1 है तो उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इज दिस क्लियर? ऐसे भी कैसे सकते हैं क्योंकि लाइक अगर a is equal to b is equal to c सब्स्टिट्यूट करें तब भी 0 आएगा लॉजिक में। a equal to b equal to c रहेगा तो 0 आएगा, तो तीनों टर्म्स इक्वल रहेंगे तो ऑफ कोर्स, बट तब ना ये A क्वाड्रेटिक is equal to इक्वेशन B ही is नहीं equal to रहेगा। C हो ही नहीं सकता. हाँ, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा, कोएफिशिएंट ऑफ Yes. x स्क्वायर 0 अलाउड नहीं है। Yes sir. हो गया लिख के? Yes, sir. Fair enough. What about others? Yes. ठीक है, नेक्स्ट चलो स्टार्ट करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट। होमवर्क में डाउट्स है क्या किसी को? Yes, sir. पूछो। So just a minute. अदर देन अपर्णा और किसी को डाउट है क्या होमवर्क में? हाँ सर, एक मिनट ओके, सर, एसआई टाइप का था वो। अच्छा, उसमें एक मैं पढ़ूं? just 1 minute, I'll just try to open मॉड्यूल से ना। हाँ, 2B का सेकेंड वाला। हाँ, 2B का कौन सा क्वेश्चन? सेकेंड वाला। ओह, that is a good question. So मेरा period out है. 2B का सेकंड वाला कोई भी बता सकता है क्या कि जिसने किया? देखो सर, वो अपन, हाँ इसे ओपन जानवी, करके उनको दिन परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। करेक्ट करेक्ट, देन सर हो गया उसके बाद? ओके, देखो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन पूरे को ना ओपन कर रहा हूँ ब्रैकेट्स, अपर्णा और हरलीन। ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर आएगा पहला टर्म, और नेक्स्ट टर्म है -2ab/p -2bc/p -2ca/p, और तीसरा टर्म है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, नाउ इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है। नाउ कैन यू ऑब्जर्व a स्क्वायर p स्क्वायर -2abp प्लस b स्क्वायर, ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगे? AP plus B whole square। ap minus b द होल स्क्वायर। ऐसे नेक्स्ट तीन मिलके
BP minus C the whole square plus CP minus D the whole square is less than or equals to 0. Now we got sum of three perfect squares is less than or equals to 0. Is it possible? Only the equal to. Only when The equal less to than 0. is not possible. लेस देन 0 तो अलाउड नहीं है किसी का भी स्क्वायर रियल नंबर से, तो इक्वल टू 0 ही पॉसिबल है, तो ईच वन ऑफ देम हैज टू बी इक्वल टू 0 ओनली. तो पहला वाला इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, AP माइनस B इक्वल्स टू 0, मतलब P का वैल्यू आ गया B बाई A, और वही P का वैल्यू सेकंड एक्सप्रेशन से आ रहा है C बाई B, और वही P का वैल्यू थर्ड एक्सप्रेशन से आ रहा है D बाई C. तो B बाई A इक्वल्स टू C बाई B इक्वल्स टू D बाई C. ये देख के तुम्हें रियलाइज करना चाहिए कि ABCD आर इन GP, रेशियो सेम है. ठीक है, हाँ. ओके. डाउट है तो पूछो अपर्णा, या फिर नेक्स्ट डाउट. और बताओ. और सर ये एक्सरसाइज 1C का 22nd. वन सी का 22nd. यस सर. वो पहले सम को ऐड किया क्या, 1/3 प्लस 1/3. यस सर. वो कितना आ रहा है? सर तो वो लाइक 2 आएगा ना. 2 नहीं आएगा शायद. सर 1/2 आता है. 1/2 आना चाहिए. कुछ एरर कर दिया तूने उधर ही. यस सर. तो सर मैं वापस करती हूँ. ठीक है. विंडो जो है सर, हाँ. उसका क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट मेरे को ना अप्रोच नहीं पता कि वन में कैसे लिटरल, करूं. वन में तो लिटरली एडिशन करना है. तो सर 9 तक ऐसे ही क्यूब करते हैं सिंपली. हाँ 9 क्यूब 729. हाँ सब नहीं, जिस मेरे को लगा कि इसका कोई मतलब अगर बड़े नंबर्स होंगे तो क्या बड़े कर नंबर सकते होंगे हैं. तो देयर इज अ मेथड दैट विल स्टडी Okay. either by today's and और नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में कर लेंगे. बट 9 क्यूब होगा तो एडिशन ही करना है लिटरली. Okay. सो मैंने वैल्यूज डाल दी थी. वही वैल्यूज ही डालना है. मैं भी वही कह रहा हूँ कि पॉजिटिव वैल्यू से ऐड कर लो माइनस नेगेटिव वैल्यूज, दैट इज ओनली फास्टर. और बताओ. Safe नहीं थे. बस, और किसी को कोई डाउट है क्या? एनीबॉडी इन द क्लास? ओके, चलेगा. नेक्स्ट. Okay, the next concept is arithmetic geometric progression. Arithmetic geometric progression. Arithmetic geometric progression के पहले ठीक है, इसमें ना एक्चुअली इसकी तरह नहीं है, एपी और जीपी की तरह एलॉबरेटली नहीं करेंगे हम लोग. मेनली अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ द सीरीज पे फोकस करने वाले. मेनली हम लोग सम ऑफ द सीरीज पे फोकस करने वाले. उसके पहले डू यू गाइस रिमेंबर सम ऑफ एपी कैसे ढूंढा था? सम ऑफ एपी सर आगे और 10/2. सर आगे लिखा था, पीछे लिखा. हाँ add किया. हाँ हाँ, हाँ, मतलब, हाँ. यस, पूरा सीरीज को रिवर्स किया था और ऐड किया. ओके, सम ऑफ जीपी कैसे किया था? तो भी वैसे ही किया था. सर वैसे क्या था, लेकिन मल्टीप्लाई ऐड किया नहीं था किया उसके बाद था. उल्टा. सम ऑफ जीपी रिवर्स करके ऐड नहीं किया था. सर एक को मल्टीप्लाई किया था आर से. रेशियो से मल्टीप्लाई किया था आर से, फिर शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट किया था. ओके निदिश, शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट किया था. आई होप यू रिमेम्बर. ए प्लस ए आर रेस्ट टू n माइनस 1, इसका एडिशन ढूंढना था तो s करके मान लिया था, इसको r मल्टीप्लाई किया था दोनों साइड. तो a का मल्टीप्लिकेशन ar का ar स्क्वायर, ऐसे करके a r रेस्ट टू n हो जाएगा. फिर अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था, अभी याद आ रहा है क्या? यस सर. तो a एक बचेगा और यहाँ पे a r रेस्ट टू n बचेगा, बाकी सब. तो r से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करना जो जीपी का कॉन्सेप्ट है. एनीथिंग, एनी वेरिएशंस ऑफ जीपी में यही करो. एनी वेरिएशंस ऑफ जीपी, वन ऑफ द वेरिएशंस इज दिस अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन. एग्जांपल,
AP कोई एग्जांपल फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ 1 4 7 10 and so on. This is a AP. And for example there is a GP. GP something like GP मतलब AGP के terms में GP oftenly first term 1 prefer करते हैं 1/3 1/3 square 1/3 cube and so on. This is a GP. So a typical AGP looks like first term of the AP multiplied with first term of the GP. So 1 into 1 1. Second term of the AGP will become 4 into 1/3 4/3. Third term will become 7/3 square, then 10/3 cube and so on. This is the way a AGP is. This such kind of sequences are called as an AGP. Now generalized तरीका लिखूं general term. General AGP कैसे लिखूं? Can you guess? Predict. Like AP मान लेते A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. और एक GP मान लेते 1R common ratio फिर R square R cube. तो AGP रहेगा A plus D into R plus A plus 2D into R square and so on. If I ask you what is the general term of an AGP, general term of an AGP क्या होगा? AN into A R. plus N A minus 1 into D. A plus N minus 1 into D. AP का जनरल टर्म लिख दिया, मल्टीप्लाइड विथ क्या? R to the power N minus 1. R to the power N minus 1. That is how a general term of an AGP is written, and this is absolutely useless for our our portion and all. But still, हम लोग को mainly इसके addition से करने से मतलब है. उसके पहले, did you guys understand how to identify an AGP? Yes, sir. मतलब एक टर्म जो है AP में होना चाहिए और एक टर्म GP में होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन. ओके, इसको फटाफट लिख लो 1 मिनट के अंदर. विल प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस. सर तो AGP के लिए जो फर्स्ट टर्म होगा हमेशा 1 होता है, जो A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, GP वाला साइमल्टेनियस वाला. GP वाला फर्स्ट टर्म A रहेगा ना, तो वो A को कॉमन निकाल दे और AP के हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दे. समझी क्या? नहीं सर, जैसे कि 1 नहीं लेते, 2 ले लेते. 2 2/3 2 ऐसे हो गया मान ले. तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या होगा? 2, फिर 8/3, फिर 14/3 स्क्वायर ऐसे रहेगा, फिर 20/3 क्यूब. तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे मान लो कि 2 8 14 20 AP में है और फिर 1 1/3 1/3 स्क्वायर GP में है. ओके ओके सर. समझे क्या? मतलब जीपी का वो ए स्मॉल ए जो है कॉमन निकाल के एपी के हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट फॉर आवर ईज. हो गया सर. ओके, एवरीवन एल्स? सर एक मिनट. हाँ हाँ, हो गया सर. okay. We'll start with a simple question only. उसके बाद क्वेश्चन के बाद बाकी सब इजी हो जाएंगे. लाइक एक एजीपी बता सकते हैं क्या? कोई गेस कर सकते हैं क्या? और फिर मैं एक को देखूंगा. Something like फर्स्ट थ्योरी बताने के पहले ही मैं क्वेश्चन कर रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन से इजीली समझ में आ जाता है. फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 plus 4/5 plus 7/5 square plus 10/5 cube so on until infinity. First thing, is everybody convinced that this is an AGP? Yes, sir. 1 4 7 10 AP में है और कॉमन रेशियो कितना है? 1/5.
1 1 by by 5 1 5. by 5। तो इसको इसका वैल्यू ढूंढने के लिए इंफिनिटी तक है, तो स्पेशली एग्जाम में इंफिनिटी तक ही पूछने वाले, हम लोग एन टर्म्स तक का भी करेंगे, बट इंफिनिटी तक के लिए व्हाट वी डू इज जस्ट लाइक जीपी का डिराइवेशन जैसे किया था वैसे ही डिराइव करो। जैसे डिराइव किया था एज इन हम लोग इसको कॉमन रेशियो 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड 1/5 और कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। सो द फर्स्ट टर्म 1 will become 1/5. I am writing it under 4/5. Next one 4/5 का बन जाएगा 4/5 square, फिर 7/5 cube and so on. इंफिनिटी तक है तो अच्छी बात यह है कि लास्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद वेरी वेरी ऑब्वियस हम क्या करने वाले, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाइंग विद द कॉमन रेशियो, देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 1 + 3 कॉमन निकाल देंगे। 4/5 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड 4/5 बन जाएगा 4/5s, ठीक है। 1 - 1/5 4/5s इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 1 प्लस क्या 4/5 माइनस 1/5 कितना 3/5, फिर 7/5 स्क्वायर माइनस 4/5 स्क्वायर 3/5 स्क्वायर, फिर 3/5 क्यूब एंड सो ऑन। इसकी वजह से फायदा क्या होगा, जीपी यस ये 1 को छोड़ के बाकी पूरा जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का एडिशन क्या होगा, a/1 - r। तो यहाँ पे क्या लिखूं 3/5 डिवाइडेड बाय 1 - 1/5। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई के 1 + 3/4 हो जाएगा विच इज 7/4। तो वी फाइनली गॉट therefore 4s/5 is equals to 7/4, or the value of s is basically 5 multiplied 35 divided by 16. So that is the final answer, 35/16. All we have to do is just common ratio से multiply करो, shift करके subtract करो, multiplied common ratio shifted by a unit and then subtract it. So that is the general procedure. पहले इस क्वेश्चन को लिख लो, फिर we'll practice it for generalized terms. साइना चेक कर लेना कहीं मिस्टेक हुआ क्या। यस सर, वो प्लस का साइन मैंने लिख दिया था। See, very very easy thing यार AGP actually। AGP पे सम ऑफ AGP ही आता है और कुछ AGM करके कुछ नहीं होता है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन करके कुछ नहीं होता। तो इंसर्टिंग ज्योमेट्रिक मीन्स वाला कॉन्सेप्ट भी हट गया, सिर्फ सम ऑफ द सीरीज ही है। इनफैक्ट रेस्ट ऑफ द चैप्टर में सब में रैंडम सीरीज आएंगे और सम ऑफ द सीरीज से ढूंढना है, वही है। कोशिश करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। तो उसके बाद कौन सा चैप्टर, उसके बाद पता नहीं, स्ट्रेट लाइंस से बचा है शायद तुम्हारा, स्ट्रेट लाइंस स्टार्ट नहीं हुआ ना या सर 11th में कितने चैप्टर है? 11th में 10 मान लो। कितने हुए तुम्हारे? सर हम लोग के 2 ही हुए हैं। बेसिक मैथ्स को एक चैप्टर मान रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ 11th में 10 और 12th में 15 मान लो सॉर्ट ऑफ। सर 11th कब खत्म होगा? फरवरी के आसपास मान। सर तो आगे के चैप्टर्स छोटे हैं। हाँ सुपर छोटे हैं, लाइक 2 लेक्चर्स और 3 लेक्चर्स में एक चैप्टर खत्म हो जाता है। और बहुत ज्यादा वेटेज भी है 12th का, बट 11th का सब यूज होता है 12th में। तुम लोग क्या बोर हो गए क्या 11th के साथ ऑलरेडी? नहीं सर बहुत स्लो चल रहा है सब कुछ, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आराम से हो रहा है। अच्छा पोर्शन स्लो चल रहा है ऐसा लग रहा है क्या? हाँ नहीं मतलब ऐसा बहुत कम चैप्टर्स है अभी तक और ऐसे खत्म होने को ऑलमोस्ट। हाँ चैप्टर्स तो कम है बट एक्चुअली बहुत सारी चीजें जो नहीं पता है वो सब बताने में जाता है टाइम। उसके बाद फिर एकदम से फास्ट हो जाता है, उसके बाद फिर कोप अप करने में चला जाता है टाइम 12th पूरा।
इधर है। हो गया क्या? डन? इज इट डन एवरीबॉडी एल्स? यस सर। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस एजीपी का कॉन्सेप्ट, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं अभी जनरलाइज क्वेश्चन जनरलाइज्ड भी कर रहा हूँ, वो वाला तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल ही, बट जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए मैं बस बता रहा हूँ। अगर जनरलाइज एजीपी का सम करना है, मतलब ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, so on until and up to n terms करना है। फॉर एग्जांपल up to n terms करना है, sn बुला लेता हूँ। तो लास्ट टर्म क्या लिखूं? what will be the last term? A plus n minus 1. a plus n minus 1d into r raised to n minus 1। इसको भी r से मल्टीप्लाई करूंगा, r से मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट टर्म a इंटू आर हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म a प्लस d इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, फिर ये वाला आगे शिफ्ट हो जाएगा, वो बन जाएगा a प्लस n माइनस 1d इंटू आर रेज टू n। फिर अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बिकम 1 माइनस r इंटू sn इज इक्वल टू राइट हैंड साइड a विल बी a ओनली। फिर नेक्स्ट a प्लस d इंटू आर माइनस ar, इनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा? dr dr। कैन यू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन? a plus 2 dr dr square. dr स्क्वायर, फिर dr क्यूब, इस तरीके का सीरीज आएगा। फिर फाइनली यहाँ पे भी एक dr रेज टू n माइनस 1 आएगा, माइनस ऑफ दिस लास्ट टर्म, माइनस दिस a प्लस n माइनस 1 dr रेज टू n। बस ये एक ही हेडेक है, n टर्म्स रहेगा तो एक और nth टर्म भी आएगा। इनफिनिटी था तो हमने इग्नोर कर दिया था। फिर इसका सम तो ढूंढ ही सकते हो, 1 माइनस r इंटू sn इज इक्वल्स टू a प्लस फिर dr से लेके dr रेज टू n माइनस 1, वो एक जीपी है, उसका सम ऑफ ए जीपी यूज कर लेंगे, a इंटू 1 माइनस r रेज टू n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r, फिर माइनस a प्लस n माइनस 1 d r रेज टू n, फिर फाइनल s हो जाएगा ये 1 माइनस r को राइट हैंड से डिवाइड करके। That is treated like a formula in few books, which is absolutely not necessary for you to remember. Just this process is very easy to remember. R से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करो, बस उस प्रोसेस को याद रखो, इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डू यू गाइस वांट टू कॉपी दिस डाउन? हाँ सर। no sir ठीक है, हाँ बोला कि ना बोला? yes sir ओके, जल्दी कॉपी कर लो। फिर एजीपी के वेरिएशंस भी अभी कर लेंगे। तो बेसिकली एजीपी की जगह एनीथिंग जीपी रहे, मतलब कोई भी सीरीज इनटू जीपी रहे तो थिंक ऑफ दिस प्रोसीजर ओनली, आर से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करो। तो ये चैप्टर से भी एक ही क्वेश्चन आता है। हाँ, इस चैप्टर से भी आता है क्वेश्चन। इलेवेंथ के चैप्टर्स एक्चुअली बहुत बड़े हैं, 12th में सिर्फ एक ही बड़ा चैप्टर है, इंटीग्रेशन। तुम लोगों को इंटीग्रेशन टफ लगता है कि डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन। कुछ भी नहीं। दोनों इजी है क्या? इंटीग्रेशन टफ लगता है? हाँ सर, इंटीग्रेशन में टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। हाँ यार, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन फंक्शंस वगैरह भी में बड़ा चैप्टर है। क्या बड़ा चैप्टर है? फंक्शंस। हाँ, फंक्शंस का एक्चुअली मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आईटीएन सब में तो बेसिक मैथ्स में करा देते हैं। हमारा हो गया। हाँ, मतलब लाइक फंक्शंस का लाइक 20-30% हो गया तुम्हारा। yes. अच्छा ही है बेसिक मैथ्स के चक्कर में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी पढ़ा है क्या तुम लोगों को?
Yes. Yes. Okay, great, great. और fractional part, Yes, sir. Yes. वो भी पढ़ा है, सही है. ये घर पे सॉल्व करना है तो करना ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में चाहे तो टाइम पास में डिस्कस करते हैं. सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. फ्री टाइम होगा तो करो वरना छोड़ दो. Okay. Are others done with the derivation? Yes, Yes, sir. yes, Yes. Mansi, telescopic series is a part of this chapter. By the end of this class or next class will start. Telescopic is just a name. We have been doing telescopic unknowingly. जिसमें something minus something रहेगा तो terms cancel होते जाएंगे. Yes, sir. Telescopic series that is considered tough. The reason is basically that is very random. Random नहीं है actually. Variety of questions ज्यादा है उसमें. Variety of questions only. Okay. Read on. Find. अच्छा. Also note करके लिख लो. Sum to infinite AGP. Infinite AGP exists if modulus of R is less than 1. Just like GP, sum to infinite AGP also, it also exists if modulus of R is less than 1. मैंने हॉलनाइट में गलती से दे दिया था एजीपी का क्वेश्चन, शायद तुम लोगों को दिया था क्या या किसी और क्लास में दिया था? Okay, questions are on the board. Give it a try. First question, if modulus of x is less than 1, find the sum 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube, so on until infinite.
अर्नव डिनोमिनेटर पूरा स्क्वायर है ना, ब्रैकेट में होगा. अपर्णा एंड जानवी आर राइट. अर्नव समझा क्या मैंने क्या बोला? नहीं सर. वो स्क्वायर जो है सिर्फ x के ऊपर है कि जो हाँ तूने सर, सिर्फ x के ऊपर है. ओ तो गलत है यार. कैसे किया? सर यही मेथड ऑफ डिफरेंस. हाँ करेक्ट, दैट इज द राइट वर्ड, मेथड ऑफ डिफरेंस. ओके, x मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एस इज इक्वल्स टू x प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x क्यूब प्लस सॉन. इन्फिनिटी है तो तुम लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इन्फिनिटी तक है. फिर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस एक्स इंटू एस. राइट हैंड साइड क्या बन रहा है? ऐसे आना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वेयर सो ऑन टिल इन्फिनिटी. तो इसके बाद देखो दैट साइड मुस्कान मानसी. अनिरुद्ध सेकंड वाला गलत है. नहीं सर, पूरा होल में है ना. सेकंड वाला 1 माइनस एक्स द होल क्यूब बोल रहा है. हाँ. आई हैव टू चेक दैट. ओके. आई एम नॉट श्योर. नहीं सर, होल क्यूब नहीं है. नहीं आ रहा है ना, मतलब होल क्यूब आएगा लेकिन न्यूमरेटर 1 नहीं आएगा शायद. अनिरुद्ध, लेट मी जस्ट चेक दैट. ओके, इसके बाद अर्नव, डिड यू अंडरस्टैंड? जस्ट अ मिनट, बहुत Yes, सारे लोग आंसर्स भेज रहे हैं. जिसने भी भेजा सही है, प्रभास, अपूर्व एंड नितीश. So 1 minus x into s is equals to mainly I'm focusing on Arnav. Arnav तुझे आया क्या इसके आगे? हाँ सर. राइट हैंड साइड जो है 1 upon 1 minus x होगा ना. 1 by 1 minus x, तो s का वैल्यू हो जाएगा 1 by 1 minus x the whole square. One upon 1 minus x the whole square. Okay, I just want to confirm. First question किसी को डाउट है क्या? First question. Anybody? Okay. I'm erasing the first question, assuming सबका आ गया. जानवी, तेरा और अनिरुद्ध का सेम ही आंसर है. तूने ही नहीं बोला ना थोड़ी देर पहले. सर वो 3 नीचे आएगा, वो बोल रही थी. ओके ओके, हाँ. अनिरुद्ध तेरा करेक्ट है शायद. लेट मी जस्ट कंफर्म इट इन अ मिनट. मैं भी कंफर्म. So second वाले का मैंने भेजा है, बताओ. हाँ इब्राहिम, वही सबने वही भेजा है, वही करेक्ट रहेगा. ओके, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन, इज इट एजीपी? No sir. दो बार सम ऑफ डिफरेंस. हाँ, second question is not an AGP, but still the method that we are going to use is the same. Second question is not an AGP, but the method is going to remain the same. AGP जैसे ढूंढते हैं AGP का सम, इसका भी सम उसी तरीके से ढूंढेंगे. That's right, Mansi. Second question, in spite of it not being AGP, we will use the same method. Basically what I wanted to tell is, कभी भी GP जैसा आए तो तुम लोग यही मेथड यूज कर लो. तो x into s
is x plus 3x square plus 6x cube and so on. That's right, Prabhas. Anirudh also correct. Subtract करेंगे तो 1 minus x into s equals to right hand side subtract करेंगे तो 1 plus 3x minus x 2x हो जाएगा, फिर 3x square plus 4x cube and so on. फिर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो? फिर से x मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे. हाँ यस, या तो ये जस्ट फर्स्ट आंसर ही है. नाउ इट हैज फॉर्म्ड इनटू एन एजीपी. फिर से x मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और यू कैन बोरो द फर्स्ट आंसर. फर्स्ट आंसर इज 1 upon 1 minus x the whole square. So we got 1 minus x into s is equals to 1 divided by 1 minus x square. थर्ड वाला अपर्णा गलत है शायद. जानवी ऑल्सो. वेदांत्या. पृथ्वी ऑल्सो करेक्ट. Okay, Vedant. Let me just confirm it in 2 minutes. Second answer is 1 upon 1 minus x the whole cube. इब्राहिम दोनों में से एक प्लस x रहना चाहिए. सर डिनोमिनेटर सर. हाँ. मानसी नहीं यार. That is correct, Jairaj. That's right, Prabhas. Okay. ये third question, is it an AGP? No sir. What is the common ratio? Minus x. Minus x. Minus x will be the common ratio. So just like the procedure, we'll multiply with minus x. So first term will become minus x. Next term will become plus 3x square. फिर minus 5x cube and so on. Subtract करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 1 plus x into s आएगा और राइट हैंड साइड के सब्ट्रैक्शन में 1 minus 2x plus 2x square minus 2x cube and so on. ऐसे आएगा. That's correct, Mansi. Okay. तो 1 plus x into s equals to, can you help me with the right hand side? क्या करना चाहिए? सर 1 को छोड़ के बाकी सब जीपी है. 1 को छोड़ के बाकी सब जीपी है. 1 को छोड़ के बाकी सब जीपी है. उसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशियो क्या है? -2x फर्स्ट टर्म विल बिकम -2x और कॉमन रेशियो -x, तो 1 - r will be 1 + x. करेक्ट. दैट इज परफेक्टली सेड. बस इसको सिंपलीफाई करना ही अपना काम है. तो सर इसके बाद मेरा आंसर तो सही होना चाहिए. 1 - 2x by 1 + x है ना.
हाँ सर यही आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया? तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हाँ, तो फाइनल आंसर क्या है? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ करेक्ट है। तूने शायद क्यूब भेजा था ना? तूने वन नहीं सर माइनस स्क्वायर भेजा सर, मैंने वापस सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। एक सेकेंड यार, तो मेरी गलती है। नहीं नहीं, सही भेजा तूने, थैंक यू। 4 मिनट्स पहले भेजा था, करेक्ट था। सॉरी, आई ओवरलुक्ड विद सम अदर एल्सेस आंसर। नो सर इट्स फाइन। ओके, बेसिकली एजीपी हो या सम एल्स जीपी हो, यही मेथड है। ये मेथड समझ में डाइजेस्ट हो गया ना? यस सर। सर मैंने क्या किया? ठीक है, हाँ बोलो। सर मैंने सारे पॉजिटिव टर्म और सारे नेगेटिव नेगेटिव टर्म्स को अलग अलग से ऐड किया, चलेगा? टर्म्स को सेपरेट करके ऐड कर लिए यार। चलेगा, दैट विल आल्सो डू। ओके, चलेगा। थोड़ा और फास्ट करते हैं। किसी को डाउट है क्या इस प्रोसीजर में? ओके, डन। फिर फास्टली 4th क्वेश्चन। एन टर्म्स तक का भी क्वेश्चन चाहिए क्या तुम लोगों को? तो चलता है, बस सर चैट पर टाइप करने को नहीं होगा। क्या? हाँ, टाइप टाइप करने में नहीं होगा। कर ही लेते हैं, सेम ही एग्जांपल। कोई अगर स्लोली कर रहा है या कोप अप करने में टाइम जा रहा है तो भी बताओ, आई विल गो स्लोअर। सर और दे दो। सर फिफ्थ वाला तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। फिफ्थ वाला हाँ। इंफिनिटी तक किया था, ये एन टर्म्स तक है। सर इन्फिनिटी तक किया था, लेकिन मतलब सब कुछ पता ही है तो। हाँ, एन टर्म्स तक का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए। सर एन टर्म्स पूछते हैं। पूछा तो नहीं है अभी तक, ऑब्जेक्टिव है ना। बट एक बार इंटीजर टाइप में अप टू 100 टर्म्स पूछा था। ओके, तुम लोगों को 5 मिनट्स टाइम दूं या एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूं?
5 minutes time. 5 थोड़ा minutes. टाइम दे दो सर। श्योर श्योर। कोई कोई सम में अटक रहा है तो बताओ। सर फर्स्ट वाले का थोड़ा सा फर्स्ट वाले में भी x मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सबट्रैक्ट करना। सर, लेकिन आगे मतलब तो अलग फिर अलग तो डिफरेंस फिर क्या आया शिफ्ट करके सबट्रैक्ट करने के बाद? सर 2 बार लगाना पड़ेगा इसमें। सर इसमें हाँ वही फिर से वही यस। फिर मैं आंसर करे। फिर एजीपी आएगा। एक सेकंड। मानसी का करेक्ट है, अपूर्व ऑल्सो करेक्ट। किसने पूछा था? जयराज इज ऑल्सो करेक्ट। प्रभास 4 नहीं आएगा, बाकी सब सही है। तो फोर्थ क्वेश्चन का ऐसा लिखा अच्छा ओ है, अच्छा एक अच्छा ब्रैकेट में से। हाँ हाँ सॉरी, सही है। जानवी ऑल्सो करेक्ट। जानवी जानवी बस प्लस माइनस का डिफरेंस, ऊपर माइनस नीचे हाँ प्लस। हाँ हाँ सर, वो पिछले प्लस क्वेश्चन नीचे कॉपी करके पेस्ट कर दिया था। अच्छा वेदांत करेक्ट है। एक्स मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करो, फिर एजीपी आएगा। तो तुम लोगों को सेम प्रोसीजर वापस से करना पड़ेगा फोर्थ क्वेश्चन में। I'll solve it in 2 more minutes. In the meantime, give it a try. और हैप्पी गणेश चतुर्थी एवरीबॉडी। हो गया कल बट स्टिल। सेम टू यू सर। घर पे लेके आए क्या? Yes, sir. सही है। किस किस के घर पे आए? Yes Vedant, that is right. मुस्कान थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। डिनोमिनेटर का सेकेंड टर्म 1 माइनस 2x नहीं, वो 1 माइनस x का स्क्वायर होना चाहिए शायद। एक सेकंड मानसी, तेरा आंसर फर्स्ट टर्म तो करेक्ट है, माइनस 12n प्लस 7 डिवाइड बाई। अरे वाह परफेक्ट है मानसी, बहुत सही है। तो टाइपिंग में भी इतनी फास्ट है। सीखा है क्या टाइपिंग, या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर करके फास्ट हो गई? सर कोडिंग के बाद हो गया ऐसा। हाँ वही वही। सर बहुत अजीब आंसर है क्या फिफ्थ का? किसका? फिफ्थ का? यस सर। एक कांस्टेंट आएगा माइनस एक n के टर्म्स आएंगे। ओके मुझे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, मैं फोर्थ वाला कॉर्नर में करता हूँ। फोर्थ वाला किस किस को डाउट है अभी? किसको डाउट है फोर्थ तो क्वेश्चन? मुझे हाँ अपना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर x 3 स्क्वायर x क्यूब ऐसे है ना। पहले x मल्टीप्लाई किया शायद, yes sir. शिफ्ट करोगे तो फिर 1 स्क्वायर x आएगा, फिर 2 स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, ऐसे करके आएगा। Yes sir. सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? सब बहुत गंदा आ रहा है मेरे को। एक सेकंड, 1 माइनस x इंटू s आया क्या लेफ्ट हैंड साइड? Yes. यस सर। राइट हैंड साइड फर्स्ट टर्म 1 1। प्रभास परफेक्ट है आंसर। 1 फिर प्लस 3x करेक्ट प्लस 5x square. हाँ इंफिनिटी। ये कौन सा सीरीज है? 1 3x 5x स्क्वायर एंड सो ऑन। AGP में आ गया। एजीपी है फिर से, तो इसका एडिशन ढूंढते हैं। तो फिर से कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड?
अपूर्व X. करेक्ट x, तो x इंटू 1 माइनस x इंटू s, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, X plus 3x square plus 5x. 5x एंड सो ऑन. फिर से सब्ट्रैक्ट करोगी, 1 plus 2x एक सेकेंड, plus 2x. हाँ राइट हैंड साइड बता रही हो, 1 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर, सही. लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 1 माइनस x इंटू s कॉमन आ सकता है, Yes, sir. So 1 minus x the whole square हो जाएगा. करेक्ट, 1 माइनस x द होल स्क्वायर इनटू s. ओके, दिस इज राइट. इसमें क्या अजीब आ रहा है, 1 को छोड़ के राइट हैंड से बाकी सब जीपी है, Yes, sir. सम ऑफ जीपी हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस x Yes, sir. इज इक्वल्स टू 1 माइनस x द होल स्क्वायर इनटू s. तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 1 माइनस x प्लस 2x, 1 प्लस x हो जाएगा, 1 प्लस x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस x. 1 minus x. लेफ्ट हैंड साइड से भी 1 माइनस x का स्क्वायर बोरो कर लोगे तो 1 प्लस x बाय 1 माइनस x का क्यूब आएगा. दिस शुड बी द आंसर, 1 प्लस x बाय 1 माइनस x क्यूब. अनिरुद्ध, 1 प्लस x बाय 1 माइनस x द होल क्यूब आना चाहिए. जब तूने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस x का स्क्वायर बन जाएगा वो. Yes, sir. 1 minute. बाकी और सेकंड वाले में सेकंड वाला हाँ सही लग रहा है, बट एक सेकंड में फिर भी चेक करता हूँ. थर्ड वाला तो करेक्ट है, सिक्स्थ वाला आई मीन. ओके, इधर है. फोर्थ क्वेश्चन जिसको डाउट है क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. ओके, आई विल गिव यू लाइक 3 to 4 minutes. आई विल आल्सो कम बैक, एक छोटा सा काम है.
सर मेरा लास्ट आंसर करेक्ट है क्या? अपूर्व क्या? अनिरुद्ध। अपूर्व का करेक्ट है, एक सेकेंड। वेदांत सिक्स्थ वाला बी ए एक्स एक्स कहाँ से है, ए कहाँ से है सिक्स्थ वाला? जयराज B करेक्ट है है। वो। एक सेकंड चेक कर रहा हूँ। जानवी न्यूमरेटर गड़बड़ है। यस इब्राहिम, जितने भेजे सब करेक्ट है। अनिरुद्ध मला करेक्ट, जयराज करेक्ट। ओके, सर ये वो वन सब है। अपर्णा करेक्ट। अपर्णा इतना फास्ट पहुंच गई एकदम से, 4 से 7 बीच के किए ना? हाँ सर, सर जस्ट वो जो 6 वाला है उसमें ज्यादा टाइम लगा, उससे ऊपर वाला तो पहले ही कर चुका था। Yes, still Easy you था। did very fast. Okay, एक second. Let me just erase this. Okay, निधि, शर्लीन, फॉलो कर रहे हो क्या अभिनव? हाँ सर सर। मेरे आंसर्स कैसे हैं? कैसे है? किसने भेजा? मानसी करेक्ट है, जानवी करेक्ट है। किसने भेजा? कैन यू जस्ट सेंड इट सर अगेन यार, इतने सारे मैसेज खो yes, गया। sir, yes. प्रभास क्या? प्रभास सिक्स्थ वाला गड़बड़ है, 7th करेक्ट है। ओके, फिफ्थ वाला अप टू n टर्म्स है। द ओनली हेडेक इज द nth टर्म। तो nth टर्म क्या लिखा तुम लोगों ने? nth term, anybody who can tell? सर 3n minus 2 upon 5 to the 5 power। raised to n। हाँ, वो कैसे एस्टेब्लिश किया? सर वो tn का फॉर्मूला जो था। यस, 5 का पावर तो इजी है। फर्स्ट वाले में 5 का पावर 0 है, सेकंड टर्म में 5 का पावर 0 है, थर्ड वाले में 5 स्क्वायर है, लास्ट वाले में 5 का पावर n-1 रहेगा। और न्यूमरेटर में 1 4 7 10 वो AP है। AP का nth टर्म लिखना है, a plus n-1 into d। तो 1 plus n-1 into 3 आ जाएगा। That will eventually become 3n minus 2, 3n minus 2. That is the first step. nth टर्म लिख लिया। फिर उसके बाद प्रोसीजर इज द सेम। 1/5 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5 प्लस 4/5 स्क्वायर 7/5 क्यूब। ऐसे यहाँ पे 3n minus 2 अपॉन 5 raised to n आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 4/5 टाइम्स s आएगा, और राइट हैंड साइड 1 प्लस 3/5 प्लस 3/5 स्क्वायर, ऐसे 3/5 raised to n-1 आएगा। और एक एक्स्ट्रा भी रहेगा, माइनस ऑफ 3n minus 2 अपॉन 5 raised to n। बस यहाँ पे सम टू कितने टर्म्स का जीपी अप्लाई कर रहे हो? सम टू n टर्म्स की n-1 टर्म्स? You have to apply sum of GP of n-1 terms only here. Okay. Is everybody done with this sum or should I elaborate it more? सर डन है। ठीक है, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा तो आई एम अज्यूमिंग द सेम विद एवरीबॉडी। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन प्रभा सरप्राइजिंगली गलत क्यों आया? पता नहीं सर ये क्या है। तो स्टेप्स डिक्टेट करेगा तो मैं लिख दूं? हाँ यस सर। बता सर फर्स्ट। पहले तो r से मल्टीप्लाई कर दिया s को। यस, r से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? सर पहला r फिर 1 plus b into r 1 plus b into r square। r square सर फिर हाँ। सब्ट्रैक्ट कर दिया करेक्ट। सर। तो 1 minus r times s equals 1 plus br plus b square r square plus b cube r cube। करेक्ट। सर अब फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस br। यस, सर तो क्या गलत हो गया? तो क्या होगा? 1 by 1 minus br। 1 by 1 minus br। हाँ, 1 by 1 minus br is equals to 1 minus r into s। तो तूने सर मैंने b कॉमन ले लिया, पता नहीं कैसे, अच्छा ठीक है। इसलिए 1 by b times 1 minus r square आ गया। हाँ वही वही।
So the answer is 1 upon 1 minus r into 1 minus br. That is only the answer. सर डायरेक्टली br से मल्टीप्लाई करके आप simplify करें। चलेगा, विल डू। जानवी करेक्ट, मानसी नहीं यार, मानसी ऊपर 15 नहीं आएगा, 19 आएगा शायद, चेक कर। सिर्फ 5 लिखा है। हाँ मतलब आई थॉट यू तूने 3 से कैंसिल किया। सर आई चेक जस्ट अ मिनट। सेवेंथ वाला केयरफुली करो, आना चाहिए सबका करेक्ट। और पर्व एक आंसर भी नहीं दिया आज, फॉलो कर रहा है क्या? बाकी लोग, प्रथमेश, साइना, आंसर्स बंद हो गए। नहीं सर मैंने सॉल्व किए, मैंने आपको भेजे नहीं थे बस। ठीक है ठीक है, एज फार एज यू आर गेटिंग इट, इट्स फाइन। वो आई थॉट कि ये सारे साथ में भेजूंगी। हाँ तो कब भेजोगी, नेक्स्ट क्लास में भेजोगी क्या? नहीं सर तब तक आपने वो पहले वाले सॉल्व कर दिए थे ना। अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके। नहीं मानसी, पीयूष, आर्यन, एक तो दे रहे हैं आर्यन, भाविका, दृशा नहीं आया क्या अभी तक लास्ट वाला? व्हाट अबाउट यू रोमा? So एक question. Do you guys discuss the doubts among each other, like with each other? हाँ सर। Like, did everybody make friends or something? एक दूसरे से बात करते हो क्या तुम लोग? हाँ सर करते हैं। हाँ, डाउट्स डिस्कस करना चाहिए इफ यू डिस्कस विद ईच अदर, और कॉमन डाउट्स रहेंगे, या व्हाइल यू आर डिस्कसिंग तुम लोग कहीं पे कोई अटक गए तो भी यू गाइस कैन टेक्स्ट मी, इफ आई एम नॉट इन ए लेक्चर आई कैन जॉइन द डिस्कशन। तुम्हारी क्लास में एक और सृजिता करके भी तुम्हारे क्लास से है ना? हाँ सर। एब्सेंट क्यों है पता है क्या? मुझे नहीं पता। आज एक्चुअली 6 लोग एब्सेंट है क्या, 5-6 लोग एब्सेंट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, डू यू नीड मोर टाइम और शुड आई सॉल्व इट? सर नाउ इज इट करेक्ट? No, Mansi, there's something wrong which you're doing. If you can dictate your solution, I can write it. Let me just do it. सर फर्स्ट Just one minute. Just 1 minute. Give me 1 minute or a few seconds. I'll just get a good marker. हाँ मानसी बता। सर फर्स्ट s by 19 मतलब 1 by 19 into s equals 3 by 19 square plus 33 by 19 cube and so on. Fair enough. 1 by 19 से मल्टीप्लाई किया और शिफ्ट किया। Yes sir. हाँ, Then फिर after apply- subtracting 18s by 19 equals 3 by 19 plus 30 by 19 square plus 300 by 19 cube. Yes. So 18s by 19 equals to 3 by 19 upon 1 minus 10 by 19. सब सही लग रहा है। ये सिंपलीफाई करके कितना हुआ? सर तो ये सिंपलीफाई करने को पता नहीं, मेरे को 5 by 27 ही आ रहा है। 5 So by it should be 5 1 कहाँ by से? 3. और 1/3 1/3 आएगा।
क्या है? इसके बाद सिंप्लीफिकेशन बता क्या किया, 19 कॉमन निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Oh yes sir, I got my mistake. 3/9 1/3 आएगा. Therefore s equals to 19/18 into 1/3 और s is 19/54. नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए. हाँ निदेश. ओके मुस्कान करेक्ट यार. बाकी हरलीन, रोमा, दृशा तूने भेजा नहीं, बट आई होप यू गॉट इट. हाँ सर. ऑल वी हैव टू डू इज कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करना है. सिंपल प्रोसीजर. ओके डन. एरेस कर दूं? यस सर. ओके एजीपी खत्म हो गया और एजीपी के वेरिएशंस भी खत्म हो गए. बस सर एक आई थिंक एक मॉड्यूल या किसी में तो कहीं तो एक क्वेश्चन था, उसका था सम ऑफ 0.7 प्लस 0.77 प्लस वैसा वाला. हाँ तो वो भी ऐसे ही करेंगे क्या? नहीं, ये तो इजियर है एक्चुअली. 7 कॉमन निकाल दे. हाँ 7 कॉमन निकालोगे तो 0.1, 0.11, 0.111 ऐसे आएगा. हाँ 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, तो 7/9 टाइम्स 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 वगैरह आएगा. 9 इज फेवरेट बिकॉज 0.9 को अभी मैं लिखूंगा 1 माइनस 0.1. हाँ 0.99 को लिखूंगा 1 माइनस 0.01 हाँ या 0.1 का स्क्वायर. नेक्स्ट वाला 1 माइनस 0.1 का क्यूब. इनको ऐड करना है तो फिर 1111 n टाइम्स n हो जाएगा. हाँ माइनस 0.1 का स्क्वायर 0.1 का क्यूब, वो जीपी हो जाएगा. हाँ 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 ठीक है ठीक है. ठीक है. 7/9 टाइम्स n माइनस दिस सम ऑफ अ जीपी. हाँ ओके. ठीक है. ऐसा हमने बिना पॉइंट्स का क्वेश्चन एक किया था. 7 + 77 + 777 शायद किया था. आई एम नॉट श्योर. किया था कि नहीं? सर ये एग्जैक्ट नहीं किया होगा बट इस टाइप का किया था. ओके ओके ठीक है चलेगा. ओके एरेज कर दूं हरलीन? हाँ ओके नेक्स्ट. उसके नेक्स्ट पे नेक्स्ट नोटेशन, एक नोटेशन या तो ऑपरेटर है सिग्मा नोटेशन, या तो इट इज अ नोटेशन और एन ऑपरेटर. Have you guys encountered it in basic mathematics or anywhere else? Yes sir. कैपिटल सिग्मा. ठीक है. अभी कैपिटल सिग्मा लाइक यूजुअली कैपिटल सिग्मा जस्ट 1 है. 1 है. अच्छा उसके पहले जस्ट धीरे धीरे समझते हैं. तो सिग्मा सर फोकस. हाँ ओके अभी आ रहा है फोकस. हाँ सर. ओके सिग्मा r equals to 1 to 5 2r square plus 3 divided by r. ओके बस मैं 5 मिनट में धीरे बताता हूँ, उसके बाद जस्ट गो फास्ट. बेसिकली इसका इंटेंशन ये है कि यहाँ पे एक r is the variable. r is the variable. Now r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है वो सिग्मा के नीचे और ऊपर की वैल्यू से पता चलता है. तो वी आर गोइंग टू रीड इट लाइक दिस. समेशन r equals to 1 to 5. बेसिकली r का वैल्यू सिर्फ नेचुरल नंबर्स हो सकता है एंड इट कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 1 to 5. So if r is equals to 1, r का वैल्यू 1 हो सकता है. r अगर 1 पुट करेंगे तो get 2 into 1 square plus 3 divided by 1. r का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो get 2 into 2 square plus 3 divided by 2. ऐसे 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, फाइनली 5 तक पुट करेंगे. इन सारे वैल्यूज का एडिशन, इन सारे वैल्यूज का एडिशन is this compressed expression. This summation, as the name says, summation. It is just the addition of all the terms. Addition of these 5 terms. अगर सिग्मा r equals to 1 to 5 की जगह ये वाला सिंबल कभी एनकाउंटर करें, कैपिटल पाई r equals to 1 to 5 2r square plus 3 divided by r. The intention is the same. r equals to 1 2 3 4 5 put करेंगे. The only thing is instead of adding all of them, we are going to multiply all of them.
we are going to multiply all of them. 2 into 5 square plus 3 divided by 5. तो बेसिक समेशन और प्रोडक्ट का मतलब समझो, द सिंबल्स सिग्मा रिप्रेजेंट समेशन, पाई रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट, कैपिटल पाई, स्मॉल पाई रिप्रेजेंट्स ऑफ कोर्स आवर इरेशनल नंबर. तो पहले ये नोटेशन का मतलब समझ में आएगा, सिग्मा का मतलब क्या है? किसी को डाउट है क्या इसमें? सर पाई वाला, पाई वाले में भी आर को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 into 1 square plus 3 by 1. आर को 2 पुट करेंगे तो 2 into 2 square plus 3 by 2. 3 पुट तो करेंगे बेसिकली एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन. यस, एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. दैट इज इट. यही डिफरेंस है सिग्मा और पाई. मतलब इतना ह्यूज एक्सप्रेशंस को कंप्रेस करके हम लोग ऐसे लिख रहे हैं. दैट इज ऑल. स्पेशली जब कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो तो पैटर्न ऑब्जर्व करके बहुत सारे नंबर्स के एडिशन लिखने की जगह एक चीज ऐसे लिख देंगे. मैं तो अभी आज का रेस्ट ऑफ द क्लास वही नोटेशन ही समझेंगे. पहले इतना जितना बोर्ड पे बताया समझ में आया क्या एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes, sir. ओके. नाउ ये रिस्क तुम्हें लिखना है क्या कुछ? यस सर, एक सेकंड. ठीक है, जल्दी लिखो और बताओ. एक नहीं भी क्लियर, मतलब सेटिस्फाइड नहीं होगा तो भी एक 5 मिनट्स रुकोगे तो सब क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास पूरा हम लोग सिग्मा के ऊपर ही प्रैक्टिस करेंगे. इस सिग्मा में ही टेलीस्कोपिक सीरीज आएगा, मानसी एंड अदर्स हु हैव आस्क्ड. तुम्हारे यहाँ भी बारिश हो रही है क्या सुबह से? सर इस बीच में ओके. Is it done? Yes, sir. यस सर. नीचे वाले को भी सिग्मा ही बोलते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. नहीं, प्रोडक्ट बोलते हैं ओके सर. हम लोग. मेनली सिग्मा पे प्रैक्टिस करेंगे पर प्रोडक्ट भी करेंगे. ओके. एक दो एग्जांपल्स के पहले नोट करके लिख सकते हो. नोट या तो प्रॉपर्टीज. आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड कि पहले एग्जांपल दूं या पहले एग्जांपल कर लेते हैं ताकि इजी लगे. प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन. इसका वैल्यू ढूंढना है. सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to 5 i स्क्वायर माइनस 3i. आई मतलब कॉम्प्लेक्स वाला आई. नहीं, अभी आर जैसे यूज किया. दे कैन यूज एनी अल्फाबेट ऑफ देयर चॉइस, आर एस टी यू वी आई जे के, कोई भी. तो यहाँ पे आई यूज किया. आई इक्वल्स टू, ये यहाँ पे दे रखा है विच इम्प्लाइज दैट इट इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर. आई इक्वल्स टू 1 to 5, मतलब आई का वैल्यू 1 2 3 4 5 5 बार सब्स्टिट्यूट करो. आई को 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 3 into 1. 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 3 into 2. ये समझ में आया क्या? आई इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 पुट करेंगे तो ऐसे 5 वैल्यूज आएंगे. इन पांचों का क्या करना है? एडिशन करना है. सो दैट इज द आंसर. आंसर बताओ. सर आपने जैसे बोला आंसर बताओ, मैंने आंसर बता दिया. सही है जानवी, इनफैक्ट करेक्ट आंसर भी. दैट्स राइट. इब्राहिम अपूर. प्रभास गलत हो गया है, बहुत मिस्टेक्स कर रहा है प्रभास आज. सिली मिस्टेक्स.
लेफ्ट साइड साइना, माय गॉड आर्यन क्या भेजा तूने? सर सिंपलीफाई नहीं किया। तूने n टर्म्स तक क्यों किया? ओ सॉरी। 5 टर्म्स तक ही पूछा है। लेफ्ट साइड निधीश, साइना, मुस्कान, इधर हो यार। यार सिंपल एडिशन है यार, तुम लोग खुद से कर लो, आंसर 10 आना चाहिए, नहीं हुआ तो छोड़ दो, सेकंड वाला करो। दैट इज करेक्ट अपूर। बस सेकंड वाला सॉल्व नहीं कर रहे तो भी आलस आ रहा है तो भी जस्ट कैन यू जस्ट टेल मी क्या क्या किन किन को ऐड करूं? 1/3, 3/8, 4/10। 1/3, 3/8, 4/10, इज दैट करेक्ट? एनीबॉडी हु कैन कंफर्म? हाँ सर। यस सर। बस ठीक है, बस इन तीनों का एडिशन रहेगा। इट सीम्स 133/120 आएगा। दैट कैन बी सॉल्व्ड। ऑल आई एम गेटिंग यू गाइस accustomed is सिग्मा को एक्सपेंड करना पता होना चाहिए। सिग्मा इज जस्ट a compressed way to write a huge number of expressions. That is all. That's it, Janvi. Okay. चलेगा, erase कर रहा हूँ, this is just a practice guys. Okay. Now next part. We know that sum to n terms equals to t1 plus t2 plus t3 plus so on until tn. t1 plus t2 plus t3 so on until tn. t1 plus t2 plus t3 so on until tn को सिग्मा के फॉर्म में बता सकते हो क्या? क्या लिख सकता हूँ सिग्मा? क्या समेशन ऑफ tn। t, हाँ n यूज नहीं करेंगे, r यूज करेंगे प्रेफरेबली। r इक्वल्स टू 1 to n, सो sn इक्वल्स टू सिग्मा tr। बस r को 1 पुट करेंगे तो t1, r को 2 पुट करेंगे तो t2 and so on. So this is a compressed way to write it down. Okay. Now there are very simple properties which you guys can realize it yourself also. Just very very simple properties. Rato mat, just samjho. Like sigma, some constant into tr is equals to k times sigma tr. Does it make sense to you? Yes sir। यस सर। कैसे? Can you just justify it? सर कॉमन लेने ही वाले। हाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड kt1, kt2, kt3, kt4 ऐसे रहेगा। That is same as k times t1 plus t2 plus t3 plus t4. Okay. What about this? Summation ar plus br is same as summation ar plus summation br. तो वैसे भी अलग होने वाला है तो अलग अलग कर सकते। Can we separate summation? Can we use distributive property on summation over addition? Yes sir। Yes. Anybody who has doubt? ये basically a1 plus b1 plus a2 plus b2 plus a3 plus b2 ऐसे an plus bn. That is same as a के additions plus b के additions. Do you think it is the same as this summation ar into br is equals to summation ar into summation br? No sir। नो सर। ये गलत क्यों होगा? क्या वो जस्टिफाई कर सकते हो? इजी है सर 1 into 3 plus 2 into 4 सर उसको 1 plus 2 plus ऐसे करके थोड़ी ना दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर yes सकते हैं। left hand side is a1 b1 a2 b2 a3 b3 and so on. That is the left hand side. और right hand side क्या है? a1 plus a2 a3 plus a3 multiplied with B1. b1 plus b2 plus b3. They are two different things. अच्छा. Similarly, can we distribute summation in division? Summation ar by br is summation ar divided by summation br. नो सर। No sir. Absolutely rubbish. वो तो नहीं हो सकता। ठीक है। लास्ट थिंग, समेशन कांस्टेंट है k और r का वैल्यू 1 to n है। तो अभी समेशन NK। कांस्टेंट है तो अभी r को 1 पुट करेंगे तो भी k ही आएगा, r को 2 पुट करेंगे तो भी k ही आएगा। ऐसे k कितनी बार आएगा? n टाइम्स। तो राइट हैंड साइड क्या होगा? इनके। Yes, n times k. Summation of a constant is the same constant added n times, which is n times k. That's right, Piyush. Okay, write it down. The properties are very simple and very easy to remember. The properties है ही नहीं, मतलब these are just feels ही है, obvious है। पता नहीं तुम लोगों को भी obvious लग रहा है क्या? यस सर। Yes sir. अगर मैं प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए बोलूं तो प्रोडक्ट के लिए सेकेंड प्रॉपर्टी करेक्ट होगा क्या? सिग्मा की जगह पाई लिखूं तो
No, sir. No, sir. No, sir. What about third one? So that will Yes, be sir. true. तो That थर्ड और will be फोर्थ सही true. होंगे, ये वाले गलत होंगे बाकी। हाँ, थर्ड और फोर्थ करेक्ट होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड गलत हो जाएंगे। इनफैक्ट फर्स्ट वाला मॉडिफाई कर सकते हैं क्या पाई वाले के लिए? सर टू द पावर के हो जाएगा। Yes, sir. टू द पावर के होगा कि टू द पावर एन होगा? To the power n होगा, like k to the power n. के एन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जानवी? सर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ फर्स्ट, तो सिग्मा की जगह पाई होता तो k इंटू टी आर हो जाएगा k इंटू टी वन मल्टीप्लाइड विथ k इंटू टी टू मल्टीप्लाइड विथ k इंटू टी थ्री, तो k का पावर n आएगा ना? हाँ हाँ, के का पावर है, यस। ओके, सब लिख लिया तो बताओ। तो अभी तक जो हम लोग सम ऑफ एपी सम ऑफ जीपी किया था, हम लोग अभी उनको कंप्रेस करके सिग्मा के फॉर्म में नोटेशन मतलब डिनोट करने वाले। हो गया लिख के कि लिख रहे हो? And sir. Then everybody, I can Yes. wait if you ask. Okay, next. First question, find एक सेकंड, फर्स्ट वाला r इक्वल्स टू 1 to 10 करते हैं। यस, फर्स्ट वन इज द इजीएस्ट। कैसे करने वाले हो? AP का फॉर्मूला। हाँ, 1 + 2 + 3 so on until 10, 1 + 2 + 3 so on until 10, 1 to 10 we already know many ways to do। एक ट्रिक था, 10 को आधा कर दो 5 करके, या एपी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। या डू यू रिमेंबर सम टू फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स? n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2। Okay, so first answer is 55। Okay, just give me a method to solve the second question। सेपरेट कर सकते हैं। सर एक तो 2 into r का समेशन ओके, प्लस 3 into जो भी n है, which सही is है 10। सही है। और कैसे कर रहे हो? कोई और थॉट प्रोसेस? जस्ट कैजुअली आस्किंग कि क्या सोच। सेकंड वाला, जैसे r को 1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा? 5। So एक AP भी like एक GP भी बनेगा जब हम लोग split कैसे? करके सिर्फ लेट अस जस्ट चेक, एपी बनेगा कि जीपी बनेगा? सेकंड वाला, r को 1 पुट करेंगे तो 5 आएगा, r को 2 पुट करेंगे तो AP बना। 7, फिर 9, ऐसे करके 5 7 9 ये सब कुछ तो एपी का फॉर्मूला है। तो वी कैन यूज सम ऑफ एन एपी। सो दैट इज अ जनरल वे टू डू इट, कि सीरीज को एक्सपेंड कर दो, फिर ऑब्जर्व करो कि कौन सा सीक्वेंस है। एंड अनदर मेथड व्हिच अदर्स आर पॉइंटिंग आउट, आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन द सेम। सिग्मा की प्रॉपर्टी से सॉल्व करना इजी है। सिग्मा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, सो दिस इज बेसिकली सिग्मा 2r प्लस सिग्मा 3, ऐसे करके लिख रहे हैं, सिग्मा 2r प्लस सिग्मा 3। नाउ सिग्मा 2r में 2 का क्या कर सकते हैं? बाहर 2 into बाहर आ जाए। 2 into sigma r, and sigma r is 55। that was what we have done already, first question। और sigma 3 कैसे करूं? 30। 3 into n, 3 into the number of terms, 3 into number of terms, k n या n k था, तो इस क्वेश्चन में 3 into 10 हो जाएगा। so this is the answer which many of them sent me 140। जस्ट सिग्मा वाला मेथड समझ में आया ना? बस Yes, sir. समेशन के।
Okay, third question. Sigma 2 raised to r. It's a GP. GP. Yes. 2 raised to 1, 2 raised to 2. r को वैल्यूज पुट कर दो. r को 1, r को 2, r को 3 पुट करो. सारे टर्म्स लिखो. फिर उनके बीच में प्लस चिपका दो. फिर ऑब्जर्व करो कि कौन सा सीक्वेंस है. 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, so until 2 raised to 10. This is clearly a GP. Sum of a GP can be solved up to 10 numbers. Thank you. Both लोगों ने आंसर भेजा. 1023. 1023 I doubt it Into is 2. correct. So into 2. 1023 गलत है because 2 raised to 10 ही 1024 है. चेक करो प्रभास. सरप्राइजिंगली बहुत लोगों ने ये भेजा. सर into 2 होगा ना? Into 2 भी होगा. डिवाइडेड बाय 9 होगा. 2 times 2 raised to 10 minus 1 by 2 minus 1. फर्स्ट टर्म 2 है. हो गया तो बता ना. सर हो गया. सो 11 है क्या? r equals to 1 to n t r plus 1 minus t r. रोनक इसमें से कौन सा लेटर तुझे 11 लगा? ऊपर वाला. n n. आंसर tn वगैरह के टर्म्स में ही आएगा. सिंप्लीफाई करना है. Okay. All you have to do is put r as 1, 2, 3, 4. That is correct. अपर्णा गलत हो. आर्यन प्रभास सेकंड टर्म गलत है. साइना करेक्ट है. आर्यन एंड साइना करेक्ट है. Now the question is, should I help you or should I give you some time to solve? So time. सर चैट पे लिखे सर T1 वगैरह वो सब. चैट पे हाँ क्यों नहीं लिख सकती है? अनिरुद्ध n+1 कहाँ से आया? t सर कहाँ से? n के फॉर्म में आएगा ना? हाँ n के फॉर्म में ही आएगा. चाहे तो फर्स्ट क्वेश्चन कर दूं जस्ट फॉर माय सेटिस्फैक्शन. नहीं सर, नहीं सर. जानवी सेकंड वाला एक्यूरेट नहीं है. दृशा वो करेक्ट है फोर्थ वाला. दैट इज करेक्ट हरलीन. डी कहाँ से आया इब्राहिम? एपी नहीं है ये. ओ अरे एक सेकंड सर. दैट इज करेक्ट साइना. अपर्णा करेक्ट. बस सिग्मा में r की जगह 1 2 3 4 पुट करो.
ओके फर्स्ट वाला मैं कर 7 देता और हूँ। 8 दोनों 1 है क्या? 7 और 8 में कोई भी आंसर 1 नहीं है। जैसे कि फोर्थ वाला, तो r को 1 पुट करेंगे तो t2 माइनस t1 आएगा, r को 2 पुट करेंगे तो t3 माइनस t2, फिर t4 माइनस t3, ऐसे करके लास्ट टर्म आएगा tn प्लस 1 माइनस tn। सो r का वैल्यू मैंने 1 2 3 ऐसे r इक्वल्स टू n पुट किया। इन सबको ऐड करो, especially it is easier to observe if you write one under the other, it is easier to observe। तो यहाँ पे you can observe that plus t2 minus t2 कैंसिल हो जाएगा, plus t3 minus t3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अच्छे से समझो। दृश्या गलत है यार, मानसी करेक्ट है। ओके क्या बचेगा, निधि समझा क्या? ऐसे ऐसे क्रॉस होंगे तो बचेगा एक लास्ट में एक माइनस t1 बच जाएगा जो किसी से कैंसिल नहीं होगा, और यहाँ पे एडिशन में tn प्लस 1 हो जाएगा। सो द आंसर इज tn प्लस 1 माइनस t1। हाँ निधि समझा ना? हाँ सर। व्हाट अबाउट अदर्स, पृथ्वी, हाँ रोमा? ओके अनिरुद्ध, सेवेंथ वाला भी गलत है, वो दोनों डिनोमिनेटर में है क्या? हाँ सर। नहीं यार, ओके इधर वे। Now fourth question, tn plus 1 minus t1. This is the answer, fourth one. Okay. I hope everybody understood in which format the answers are going to come. Yes sir. Okay. tn कैसे कट रहा है? tn जो है इसके प्रीवियस टर्म से कट होगा। n r को जब n-1 पुट करेंगे, r को n-1 पुट करेंगे तो क्या होगा, tn-1 plus 1, tn minus tn-1 आता, ऐसे करके सब कैंसिल होंगे, मतलब वो वही भरोसा इससे करना है। दैट इज राइट अनिरुद्ध, ऑफ कोर्स दिस इज सो ऑब्वियस। नहीं था क्या? तूने कितना वियर्ड आंसर भेजा पहले। मानसी एक टर्म मिस हो गया, 4 आएंगे। सर n+1 भी आएगा राइट? हाँ हाँ सिक्स्थ वाला मुझे आंसर याद नहीं है, मैं थोड़ी देर में करता हूँ, बट तुम लोग करो। ओके नाउ ये जो फोर्थ क्वेश्चन का जो मेथड है, सेम मेथड 4 5 6 7 8 में है। इन सारे सीरीज जिसमें प्लस माइनस आ रहा है और जिसमें कैंसिल आउट हो रहा है, ऐसे सीरीज का नाम है टेलीस्कोपिक सीरीज। ऐसे सीरीज का नाम है टेलीस्कोपिक सीरीज। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। टेलीस्कोपिक सीरीज का मतलब समझ जाओ पहले। मतलब so we would like to have sigma के अंदर difference of two terms. We would really like it because calculation easy हो जाएगा और addition of so many terms will become easy. That is correct Aparna? जानवी करेक्ट लग रहा है यार, मैं चेक करता हूँ एक सेकेंड। हरलीन करेक्ट है। Chalo, I'll wait for some more time since everybody is doing fifth question, sixth or sixth question only. Fifth question भी एक के नीचे एक लिखो, give it a try. अपर्णा सर करेक्ट 7 है। का कैसा आंसर चाहिए? 7th भी जैसे 4 5 6 आए हैं। हाँ हाँ अपर्णा, ये से अंडरस्टूड दैट या। सर फिफ्थ वाले में कितने टर्म आएंगे? 4 आएंगे, 2 पॉजिटिव के साथ आएंगे, 2 नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। एक के नीचे एक टर्म्स लिखो, इजी टू रियलाइज होगा। जैसे फोर्थ वाला मैंने लिखा 1 अंडर द अदर।
That side, Saina, Apurv. Okay. Do you guys need some more time or should I tell? So just a minute. Sure. अपर्णा 8th वाले में n नहीं आएगा क्या? देखना वगैरह नहीं पड़ेगा। आना। I think कुछ N भी गलती आना चाहिए। करती। हाँ मैं करती। Okay. 5th question. भाविका आया क्या 5th question? R को 1 पुट करेंगे तो T3 माइनस T1 आएगा। R को 2 पुट करेंगे तो T4 माइनस T2, T5 माइनस T3। ऐसे लास्ट टर्म रहेगा Tn प्लस 2 माइनस Tn। एक टर्म पहले वाला भी लिखो, एक टर्म पहले, इसका प्रीवियस टर्म क्या होगा? Tn प्लस 1 माइनस Tn माइनस 1। लाइक ये R को n पुट किया तो लास्ट वाला आया, उसका प्रीवियस वाला आएगा R को n माइनस 1 पुट करने पर, R को n माइनस 1 पुट करने पर। ओके, नाउ ऑब्जर्व द कैलकुलेशन इन द ट्रेंड। ये T3 किसके साथ कैंसिल हो रहा है? थर्ड स्टेप का T3। देखो T3 जो है 2 स्टेप छोड़ के, मतलब 1 स्टेप छोड़ के नेक्स्ट, फिर T4 भी कैंसिल होगा। ऐसे सबसे पहले बचेंगे माइनस T1 और माइनस T2 तो बच ही जाएंगे। आर यू गाइस रियलाइजिंग दैट? यस सर। माइनस T1 माइनस T तो बच ही जाएंगे। फिर ऐसे कैंसिल होते हुए Tn भी कैंसिल हो जाएगा। फिर ये पॉजिटिव में कौन कौन बच जाएगा? एक Tn प्लस 2 भी किसी से कैंसिल नहीं होगा, Tn प्लस 1 भी किसी से कैंसिल नहीं होगा। सो वो आंसर आएगा Tn प्लस 2 प्लस Tn प्लस 1 माइनस T1 माइनस T2। दिस इज द आंसर फॉर द 5th क्वेश्चन। ये सबका आया कि नहीं आया 5th वाला? सर बस Tn+1 नहीं आया था, बाकी सारे आ गए थे। अच्छा, बट डिड यू रियलाइज नाउ दैट Tn प्लस 1 भी बच जाएगा? यस सर। Okay, Mansi, let me just confirm it. सिक्स्थ वाला भी थोड़ा ज्यादा केयरफुली करना पड़ेगा। ओके अपर्णा, बट n+3 तो नहीं आएगा, Tn+3 फॉर श्योर नहीं आएगा यार। यस सर, समझा मेरे को। 6th क्वेश्चन, R को 1 पुट करेंगे तो T2 माइनस 2T1 से R को 1 पुट करेंगे तो T3 आएगा। T3 माइनस 2T2 प्लस T1। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग R as 1। R को 2 पुट करेंगे तो T4 माइनस 2T3 प्लस T2। तुम लोगों को सीरीज से इसका पैटर्न लिख के ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लास्ट के 2 चीजें लिख लो, R को n-1 और R को n। सर 8th क्वेश्चन में न्यूमरेटर स्क्वायर्ड है? हाँ। ओके। ओके, अभी R को 1, R को 2, R को 3 और R को n ये सब सब्स्टिट्यूट किया। ओके, नाउ द ऑब्जर्वेशन इज what is going to get cancelled and what is going to left behind. What about the T3 thing?
T3 सब कैंसिल हो जाएंगे कि कोई बचेगा? ये प्लस T3, ये माइनस 2T3 और ये प्लस T3, ये तीनों मिलके कैंसिल हो जाएंगे। और कोई कैंसिल होगा क्या ऐसे ही? T4। तो अभी फोकस ये करना है कि बचेंगे क्या। एक प्लस T1 एक माइनस T2। हाँ, एक प्लस T1 तो बचेगा जरूर, और माइनस 2T2 और ये प्लस T2 मिलके माइनस T2 बचेगा। दैट इज करेक्ट। ओके, ऐसे कैंसिल होते होते फाइनली Tn भी किसी न किसी के साथ कैंसिल हो जाएगा। ऐसे Tn भी ऐसे कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में क्या क्या बचेंगे? हरलीन करेक्ट है। एक Tn प्लस 2 जरूर बचेगा, बस। और कुछ नहीं बचेगा क्या? सर एक और, सर -n+1। Tn प्लस 1। यस सर। माइनस Tn प्लस 1। मानसी 6th वाला एक बार चेक कर लेना। तूने n+1 की जगह n-1 या कुछ तो डिफरेंट है। सर मेरे सही है क्या 7th और 8th? 7th करेक्ट लग रहा है। 8th में आई एम नॉट श्योर, लेट मी जस्ट चेक। 7th मानसी करेक्ट है। मानसी 6th वाला चेक कर ले यार बस तू। 8th वाला अपूर्व गलत है यार। ओके साइना, दैट सीम्स करेक्ट। लेट मी जस्ट सॉल्व इट। सर मैंने n वाले टर्म को शिफ्ट कर दिया बस 1 से। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा मानसी बात कर रही थी क्या? आई डिडंट रियलाइज। हु वाज द पर्सन हु जस्ट टॉक्ड? सर मानसी। ओके हाँ हाँ हाँ, यस यस। तूने एक कम कर दिया। Is my answer correct now? क्या? Is my answer correct now? 8 वाले का। अपर्णा करेक्ट लग रहा है, बोलना चाहता हूँ, बट Tn+1 आएगा क्या n की जगह न्यूमरेटर में? लेट मी जस्ट चेक दैट। Yes sir. So Tn+1 आएगा, typing हाँ। error. ओके ओके, बस बाकी सब सही लग रहा है। अपूर्व साइना तुम लोगों का भी सही लग रहा है। अपूर्व जो अभी भेजा तूने, इतना ड्रास्टिक डिफरेंस कैसे आया अपूर्व फर्स्ट आंसर और इस आंसर में? सर मैंने पहले स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर ही नहीं देखा। स्क्वायर अच्छा इधर। 7th क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में है। 7th क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में है गाइस, तो यू गाइस कैन गिव इट ए ट्राई। r को 1 पुट करेंगे तो T2/T1 मल्टीप्लाइड विथ T3/T2, ऐसे मल्टीप्लाइड विथ Tn+1/Tn। मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लिकेशन में टेलीस्कोपिक सीरीज बनेगा। बचेगा एक Tn+1 और एक T1, Tn+1 डिवाइडेड बाय T1। यस सर। ओके, लास्ट वाला बताऊं या ट्राई करना है तुम्हें? रोमा थोड़ा सा गलत लग रहा है। सो T1 भी है डिनोमिनेटर। हाँ मैं आंसर बताता हूँ लास्ट वाला, तुम लोग ट्राई करना घर पे। वैसे मेजॉरिटी किसी का ऐसा आंसर आया क्या? T2 into Tn+1 ऐसे आया क्या? हाँ सर, अपॉन T1 into T+2। T1 into Tn+2। n+2। Yes, this is the right answer for the 8th question. तुम लोग give it a try at home. Try। ये सब क्वेश्चंस नहीं है, ये जो 8 चीजें की है, these are just जनरल लॉजिक। तो इन्हीं लॉजिक्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में we are going to materialize in the form of questions। कि डिवीजन ऑफ टू टर्म्स रहेगा या तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू टर्म्स रहेगा, तो हम लोग उसको टेलीस्कोपिक सीरीज करके बोलना स्टार्ट कर देंगे। यस मानसी, गुड वन। ओके चलेगा, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं। सॉरी फॉर एक्सटेंडिंग इट अ लिटिल। क्या सर होमवर्क दे रहे हो आप? सोच रहा था नहीं दूं आज। सर दे दो। एमटी आ रहा है सर, थोड़ा कम दो। मैं सोच रहा था ना ही दूं। एमटी कब है? सर नेक्स्ट वीक है सर, लेकिन एडवांस का भी है सर, तो नेक्स्ट ज्यादा संडे को है। हाँ सर ठीक है, आज जो हमने पढ़ा है ये सब एमटी में नहीं आएगा।
तो सर पेपर इजी है कि डिफिकल्ट है एडवांस वाला? पेपर यार अभी तक देखा नहीं मैंने, तो आई एम नॉट श्योर, बट डिफिकल्ट रहना चाहिए, होना चाहिए एडवांस का। अदर देन दैट आज के लिए कोई होमवर्क नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज खत्म हो जाएगा, तो मेजर टेस्ट के बाद पूरा ही बुकलेट मिल जाएगा, ठीक है? सब क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के बाद दूंगा जितना Okay, हो sir. सके, मैं मार्क करके दूंगा, ऐसे सारे नहीं दूंगा, ठीक है सर। ठीक है? सर पिछली क्लास हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने वाले थे सर एमजीएम पे, वो डिफिकल्ट थे सर। सारे नहीं थे या डिफिकल्ट, मतलब वो तो बुकलेट में आएंगे और टफ क्वेश्चंस, तो सर हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन कब करेंगे फिर हम? वो बुकलेट के होमवर्क में के साथ करेंगे, ओके सर, ओके। ठीक है? चलेगा गाइस, बाय। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, बाय, sir. बाय सर, थैंक यू सर। ओके बाय सर, थैंक यू सर। बाय। एमजीएम है मान लो यार भाविका। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। बाय पीयूष, बाय भाविका।